لیکن امام حسین نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا کہ جب تک بات مانی نہیں جائے گی میری گردن اس کے لیے حاضر ہے۔ ہمیں اس عید سعید کے صدقے میں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ عیدگاہ بھی اللہ کا گھر ہے اور عید کی جو نماز ہے وہ عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ عید ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور ہمارے ملک میں امن و امان کا سبب بنے۔ ہم جیسا ہندوستانی کو نہیں ہے، ہم دیش کے وفادار ہیں، دیش کے لیے ہمارے قربانی کی جو قربانی نے کرنی کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں جو جنگ میں نقصانات ہوئے، جن لوگوں کی جانیں گئی، پہلے تو سب سے پہلے ان کو جنت نصیب ہو۔ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور سب کو مبارکباد پیش کی۔ آج عید کے موقع پہ میں مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک امن کا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم سب اپنے دیش کے ساتھ تن من دھن سے سب کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ حجت خدا امام نصر عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی دعا کا ورد فرمائیں گے۔ اس عید کو سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آنے والے سالوں میں ہمارا پیار بڑھا رہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے پیغام دینا اپنے نئی نسل کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، ملت اسلامیہ کو۔ دیش بھر کی طرح آج پونچھ ضلع میں بھی بڑی دھوم دھام اور شردا کے ساتھ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید منائی گئی۔ یہ پرو قربانی اور بھائی چارے کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑی سنکھیا میں لوگ عیدگاہ اور مسجدوں میں پہنچ کر نماز ادا کی۔ آج صبح سے ہی سبھی مسجدوں میں رونق دیکھی گئی۔ لوگ مسجدوں میں پہنچ کر نماز کو ادا کیا۔ وہیں پونچھ کی مرکزی عیدگاہ پونچھ میں سب سے بڑا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ وہاں پر پہنچ کر نماز ادا کی اور اس موقع پر امن، شانتی اور بھائی چارے کی دعا بھی مانگی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وہیں اسی طرح کا پروگرام تحصیل منڈی کے بھی مختلف مسجدوں اور عیدگاہ میں منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے وہاں پر پہنچ کر نماز کو ادا کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ وہیں اگر ہم تحصیل سنکوٹ اور مہنڈر کی بات کریں تو وہاں بھی سبھی مسجدوں میں صبح سے رونق دیکھی گئی۔ پیش ہے ظہیر عباس کی یہ رپورٹ۔ الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ پورے جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور میں اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے، اپنے ادارہ کے جملہ اراکین، منتظمین، معاونین کی طرف سے اور اہلیان منڈی کو بالخصوص، ضلع پونچھ کے لوگوں کو بالخصوص، جموں کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص اور بالعموم پورے ملک اور پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عید سعید کے صدقے میں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان اور دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عید کو باعث مسرت، باعث شادمانی اور ان کی مشکلات کا اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور اس عید کو ان کے لیے ضامن فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ تحصیل منڈی کی اس مقام پر نورانی عیدگاہ اعلیٰ پیر میں ایک جمع غفیر نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی ہے، اور اس سے قبل صبح 6:30 بجے بھی یہاں کی جو نورانی جامع مسجد ہے اس میں بھی لوگوں نے مکمل طور پر، یہاں کے اہل علاقہ قرب و جوار کے لوگوں نے نماز ادا کی، اور الحمدللہ سب سے بڑا اجتماع تحصیل منڈی میں یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے۔ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور سے قبل جو 2 رکعت ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور 5 قنوت اللہ کے حضور، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ والشمس اور 4 قنوت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد 2 خطبے امام جماعت جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، اور آخر دعائے خیر سے اس نشست کا اختتام ہوگا۔ میں سرکار حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی سلامتی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ قبلہ کعبہ کی آمد ہو چکی ہے۔
तो आप सब मिलकर मेरे साथ हुज्जत खुदा इमाम अस अज्जलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की दुआ का विर्द फरमाएंगे। आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िस सात व फी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौमुद्दुहा है, यानी ईद का दिन है और आज तहसील मंडी ज़िला पुंछ और पुंछ की तमाम तर पूरे ज़िला भर की तमाम तर मसाजिद के अंदर और ईदगाहों के अंदर नमाज ईद बड़े ही शान और शौकत के साथ अदा की गई। इस मौका पर तमाम फर्जंदान तौहीद ने मसाजिद के अंदर ईदगाहों के अंदर हाजिर होकर के नमाज ईद अदा की और नमाज ईद अदा करने के बाद नमाज के बाद आखिर में आलम इस्लाम के लिए दुआ की गई और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के अमन के लिए, सुकून के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुसूसियत के साथ दुआ की गई। और उसके बाद फिर तमाम लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे से मुसाफा किया और सबको मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर हम अपनी जानिब से, अपने इदारे की जानिब से, अपनी जमात की जानिब से, तमाम उलमा की जानिब से, मदारिस की जानिब से तमाम सुनने वालों को सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस मौका पर हम तमाम हजरात से गुजारिश करेंगे कि आज का दिन ये अमन का दिन है, सुकून का दिन है, भाईचारे का दिन है और अखुव्वत का दिन है। ये दिन अल्लाह करे कि पूरे हिंदुस्तान के लिए और आलम इस्लाम के लिए बाइस रहमत हो और बाइस मुबारक। आज पूरे हिंदुस्तान की तरह जामिया मस्जिद शरीफ कासमी मार्केट मंडी में ईद उल अज़हा बड़ी शान और शौकत के साथ मनाई जा रही है। इस मौका पर मैं अपनी तरफ से और आवाज़ जामिया फैज़ुल कुरान की तरफ से पूरे आलम इस्लाम और पूरे आलम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ दो है कि अल्लाह करे कि ईद हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और हमारे मुल्क में अमन और अमान का सबब बने। इस मौका पर पैगाम देता हूँ, ईद पर अपने साथ साथ अपने पड़ोसी, ग़ुरबा, मसाकीन और लाचारों का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा सदक़ात करें और कुर्बानी का गोश्त भी अपने अज़ीज़ अक़ारिब के साथ साथ मसाकीन, ग़ुरबा तक पहुँचाने की कोशिश करें। मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक मौका हमें फिर दिया कि हमने इस दफ़ा फिर ईद उल अज़हा का बेहतरीन प्रोग्राम है यहाँ पे हमें नसीब हुआ। इस मौका पर मैं आलम इस्लाम को, खास कर आलम इंसानियत को इस वक्त मौजूदा हालात में जो हमें इस वक्त ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो हमने जिस कुर्बानी को हज़रत इस्माइल ने किया और मैदान करबला में और बाकी जो जज्बात है उसमें मुसलमानों ने चाहते पाई, उसका एक बुनियादी मकसद है कि इंसानियत की बका के लिए, वरना इस वक्त भी देखो दरिंदगी इस वक्त भी काफी है, नहीं इस वक्त भी हमें कुर्बानी की जरूरत है, इस चीज को संभालने की जरूरत है। नहीं कि हम किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा करें, नहीं, उसको अकल से, अपने दिमाग से, अपने सोच से समझाएं कि अच्छी सोच लेकर उसको कहेंगे अच्छी सोच लेकर चलो। और इस वक्त जो हमें इस वक्त मौजूदा हालात में भी इस चीज को लेकर चल रहा है कि इस कुर्बानी को सामने रखकर कि वो किन हालात में ये कुर्बानियां हुई हैं आज तक जो इस्लाम की बचा के लिए, उन चीजों को सामने रखकर ये हमने देखना है कि आगे पैगाम देना अपने नई नस्ल को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, मिल्लत इस्लामिया को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को ये दर्ज देना, ये पैगाम देना, ये समझाना है कि आओ इकट्ठे चले, प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारे को कायम करें, उसी में बका, उसी में बाकी हमने किसी ये हमें ये सोचा हमने किसी के लिए क्या किया। देखिए, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ जो जंग में नुकसानात हुए, जिन लोगों की जानें गई, पहले तो सबसे पहले उनको जन्नत नसीब हो और जो मुश्किलात हमारे लोगों ने देखी, अल्लाह ताला से दुआ है कि
उन मुश्किलात से जल्द हम लोग बाहर निकलें। ईद के मौके पे मैं जनाब कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद है कि आने वाला जो साल है ये बेहतर होगा, हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में अमन चैन और बेहतर। सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज जो हमारी ईद है, बिल्कुल अगर बात की जाए कुछ रोज़ पहले ही जो पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है यहाँ पे, उस शेलिंग के दौरान हमारे यहाँ के 16 से 18 लोग मर भी गए हैं, बहुत सारे इंजर्ड भी हैं, लेकिन एक डर आज भी है। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने गांव में ही नमाज अदा की है ईद की, पुंछ तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आज ईद के मौके पे मैं मुबारकबाद के साथ साथ एक अमन का पैगाम भी देना चाहता हूँ, पीस का पैगाम देना चाहता हूँ। और हमें आपस में आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए और पुंछ इसके लिए हमेशा से आगे रहा है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है हमेशा से रहा है। और वो इस शेलिंग में भी दिखा है कि बहुत सारे लोगों को एक दूसरे रिलीजन ने एक दूसरे के साथ मिलकर बचाया है, यानी कि इंसानियत को जिंदा रखा है। और मैं पूरे हिंदुस्तान में अमन का पैगाम देना चाहता हूं कि हमें अपने भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, वही हमारी ताकत है। उस ताकत को हमने कम नहीं, कमजोर नहीं करना है। देश के मुस्लिम भाइयों को और ख़ास जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाई और जो हमारे देश से जो बाहर भी मुस्लिम भाई रह रहे हैं, जो कामकाज के लिए गए हैं, उन सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। और अकाल पुरख ईश्वर से ये ज़रूर अरदास करूंगा कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है देश को विश्व गुरु बनाने का, देश को विकसित भारत बनाने का, वो आने वाले वक्त में ज़रूर पूरा हो, ताकि हमारा देश तरक्की कर पाए और विश्व गुरु बन पाए। के मौका पे इस ईद कुर्बानी जिसको कहा जाता है, उसके मौका पे मैं तमाम अहले वतन को और बिलखसूस हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और साथ में आज हम उस गम में भी डूबे हुए हैं जो हमारे पिछले ही महीने जंग के दौरान हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे वो छोटे छोटे बच्चे जो हमसे जुदा हुए हैं, जिन्होंने शहादत का जाम नोश फरमाया, उनके उस गम में उस परिवार के साथ भी हम पूरी तरह से इस ईद को सादगी के साथ मना रहे हैं। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो। ईद का जो पर्व है इसको बड़ी धूमधाम से पुंछ में मनाया जा रहा है और मैं अपनी तरफ से व्यापार मंडल पुंछ की तरफ से सभी भाइयों को इस बड़े त्यौहार की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। और साथ में जो हमारा प्रेम सद्भाव है पुंछ का, जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं, उसको बनाए रखने की अपील भी करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुंछ में ये जो त्यौहार है ये बिना मज़हब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख, कभी आप अगर सुबह कहीं भी जाएंगे सब मिलजुल के मनाते हैं। और इसी तरह से आने वाले सालों में हमारा प्यार भाव बढ़ता रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। और सभी भारतवासियों को अपनी पुंछ व्यापार मंडल की तरफ से किशोरकोट के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, जोगी मोड़ से लेके मिर्ज़ा मोड़ से लेके बाईपास तक, आज सब का हक था कि इस ईदगाह में नमाज अदा की जाए। लेकिन यहाँ कोई पता नहीं क्या क्या मुफाद लेके जा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और ऐसे मिशन से कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह मुसलमान कामयाब हैं, कामयाब होते रहेंगे। और ऐसे जो लोग हैं बीच में, इन लोगों को मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इकट्ठे होकर, ये हमारी जागीर है, ईदगाह जो है ये हम सब लोगों की है, ये एक मौलवी बशारत साहब की नहीं है या और किसी की नहीं है, ये हम सब लोगों की है। और इसीलिए है कि आज ईद की नमाज यहाँ ही अदा होनी चाहिए। और आप लोगों ने आप अपनी मस्जिदों में ईद की नमाजें शुरू कर दी। और कल भी सैयद साहब ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप लोग इतने मन गढ़ंत हो कि आपको ये कोई पता नहीं कि सैयद साहब ने क्या कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कह रही है। आपको उस पर अमल नहीं करते और वैसे चलते हो। ऐसे इमाम नहीं होते, ऐसे मुफद्दिल होते हैं। ईद जो है ये सुन्नत रसूल और हमारे आका सल्लल्लाहु आप मेरे साहब के साथ ईद के दिन ईदगाह में तशरीफ ले जाते। और बुखारी शरीफ की हदीस में भी है कि आप खुतबा देने के बाद
लोगों को वाज किया और फिर जहाँ खातिन बैठी थी उनको जाकर वाज किया और कहा कि खूब सदका करो, इसलिए कि मैंने औरतों को दोज़ख को देखा ज्यादा अपने शोहर की नाशुक्री और नाफरमानी की वजह से, इसलिए खूब सदका करो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर फैलाई और औरतों ने उसमें अपना जो कान से नाक से जो जेवर निकाल कर दिया। तो ईद का में नमाज पढ़ना सुन्नत है। इस सिलसिले में आपको कहा कि हम बता चुके हैं कि अब नमाज का टाइम हो रहा है और जितनी मस्जिदें थी उनमें नमाज कुछ जगहों में हो चुकी है और फैसला किया था कि नमाज ईदगाह में होगी। आपको पता है? बिल्कुल। उनके वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, हम आएंगे। और एक अहम मसला है जो हमने कल भी बताया, पहले भी बताया, मसला यह है कि ईद की नमाज, जो जुमे की या ग्रहण की नमाज, ये 5 नमाजों की तरह नहीं है और हर आदमी ये नमाज भी पढ़ा सकता है, या तो बादशाह इस्लाम हो या उसका मुकर्रर करता और माजूर हो। और जहाँ ये इस्लामी हुकूमत नहीं है या बादशाह नहीं है, वहाँ का ये उमूर जो उलमा है उनको सबूत कर दिए गए। लिहाजा हमने कल भी कहा था कि भाई जमीयत को मद्देनजर रखो, सब मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहो। साथियों, हम जैसा हिंदुस्तानी कोई नहीं है, हम देश के वफादार हैं। देश के लिए हमारे कुर्बानी की जरूरत है, कुर्बानी देने के लिए किया है, लेकिन उसके लिए हमें एकता की जरूरत है, हमें भाईचारे की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे, मेरे ख्याल हमारे सब में जो है हमें दरार पा देगी और सबके साथ